Good morning, students. In our previous video lecture, we have started our topic narration, and in that video lecture, I explained what is the meaning of narration and how there are two forms of narration, direct and indirect. What is the meaning of direct form of narration and what is the meaning of indirect form of narration? So, students, let us discuss about the common rules which are going to be applied in each type of sentences. Means we will learn how we are going to change from direct into indirect form of narration with the help of common rules. Assertive sentences, interrogative sentences, imperative sentences, exclamatory sentences, and optative sentences. These type of sentences we have to transfer from direct into indirect form of narration. First of all, we will talk about the common rules which are going to apply in each type of sentences. पहले हम उनकी बात करेंगे जो 5 कॉमन रूल्स हैं जो सभी हर तरह के जो सेंटेंस है उनमें अप्लाई होते हैं लागू। ओके, सो फर्स्ट कॉमन रूल व्हाट आई टोल्ड यू इन माय प्रीवियस वीडियो लेक्चर। फर्स्ट रूल क्या बताया था आपको? फर्स्ट ऑफ we are going to change reporting verb, change of reporting verb. According to sentence we will change your reporting verb. We have to check whether reported speech in assertive sentence, whether reported speech has interrogative sentence, whether reported speech has imperative sentence, whether reported speech has exclamatory sentences or optative sentence. According to sentence you have to change your reporting verb. Okay, and now in second we have to choose our conjunction. When we are going to remove all the marks, comma, inverted comma, mark of exclamation, question marks, means to say all the punctuation marks will be removed except full stop. सेकंड रूल क्या है कि फुल स्टॉप के अलावा हम सारे पंक्चुएशन मार्क्स को हटा देते हैं. दिस इज द रीजन दैट वी कॉल दैट आफ्टर ट्रांसफरिंग इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन द सेंटेंस रिमेन्स ओनली इन असर्टिव स्ट्रक्चर. यानी सेंटेंस जो इनडायरेक्ट बन जाता है तो केवल असर्टिव ही बचता है, उसका इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी और फॉर्म जो है वो चेंज हो जाता है. So here we have to choose according to sentence, we have to choose our conjunction and we will remove comma and inverted comma. ठीक है, सेकेंड रूल में हम comma inverted comma सारे मार्क्स को हटा देंगे और comma inverted comma को रिमूव करके जो हमारा रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है उन दोनों को ज्वाइन करेंगे. अब वो कंजक्शन कैसे चूज करेंगे ये हमारे टाइप ऑफ सेंटेंस पर डिपेंड करता है. Third one is change of reported speech subject. रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है उसको हम चेंज करेंगे और इस चेंज करने के लिए हमारा वो कॉमन फॉर्मूला जो आपको ऑलरेडी शायद बताया गया होगा, दैट विल बी सन ऑब्लिक 1 2 3. यानी this 1 2 3 means first person, second person and third person. First person, second person and third person. First person will be changed according to subject, second person will be changed according to object and third person will have no change. Okay, so with the rule of this we have to change the subject of our reported speech. Later I will explain this one in our other sentences. Okay, now you have to keep how many rules you have to keep in your mind to transfer direct into indirect form of narration. And fourth one, change of verb of reported speech. फोर्थ पॉइंट क्या चेंज होगा है ना. पहले आप माइंड में वो चीज़ें रखिए कि क्या क्या बदलना है, क्या चेंज करना है, फिर उसको आपको माइंड में रखना होगा कि वो कैसे चेंज होगा. तो 5 चीज़ें हैं जो आपको चेंज करनी है. रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना है, पंक्चुएशन मार्क रिमूव करके कंजक्शन लगाना है, रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को इस फॉर्मूले से चेंज करना है एंड फोर्थ वन चेंज ऑफ वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच.
रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का चेंज होगा। एंड फाइनली जो हमारे टाइम और प्लेस दिखाने वाले, डिस्टेंस दिखाने वाले वर्ड्स हैं उनमें चेंज होगा। लेकिन ये चेंज तभी होगा जब आपका रिपोर्टेड वर्ब के स्पीच में चेंज होगा है। इफ यू आर नॉट गोइंग टू चेंज वर्ब इन सम कंडीशंस देन द रूल नंबर 5 विल नॉट अप्लाई। जब रूल नंबर 4 यानी टेंस चेंज करेंगे तभी आप ये टाइम और डिस्टेंस दिखाने वाले वर्ड्स चेंज करेंगे। अदरवाइज यानी कम का गो, एयर का देयर, दिस का दैट, ये जो चेंजेस आपको बताए गए लिस्ट बनी है आपके बुक में, ये तभी चेंज किए जाएंगे जब आप रूल नंबर 4 यानी वर्ब को चेंज करेंगे। ओके स्टूडेंट, लेट अस डिस्कस ऑल दीज रूल्स वन बाय वन। Today we will start assertive sentence. Assertive sentence. The sentence which carry full stop in their end. Now, the example is I am not going to market. Okay, I am not going to market. So, as you know, this one is reporting verb, this one is reporting, and this one is reported speech. Now we will apply all those 5 rules one by one. There is no change in subject of reporting. It will remain same. Now, this one is verb. First rule is change of reporting verb. How we are going to change it? In assertive sentences, if you have object, this reporting verb will change say into tell, says into tells, and said into told. Okay. So there is given said, we have to change it told. He told me, said to, okay. Say to, says to, and said to. He told me. Now we have to remove comma, inverted comma, and we have to add conjunction. So in assertive sentence, your conjunction is that. First of all, we change reporting verb. Secondly, we add here conjunction that. Now, change of subject of reported speech. What is the rule for it? First person according to subject, second person according to object, and third person no change. Just see here, in reported speech, your subject is in first person. First person, you know, I, me, my, okay, we. Second person, you and your, and third person all the rest. बाकी सारी चीजें थर्ड पर्सन में आती है। तो यहाँ just see here, this one is first person, I. And what is the rule? First person according to subject. Subject means subject of reporting verb. This subject will be changed according to subject of reporting verb. And this one is in your third person. आपका reporting verb का जो subject है वो third person में. So first person according to subject means first person according to subject and subject is in third person. यहाँ पे जो पर्सन है आप उसी पर्सन में इसको चेंज करेंगे. सो इट विल बी चेंज्ड इनटू ही. He told me that he, present indefinite change into past indefinite. You know, you have provided a list in your book that all the present tense will be changed into past tense. And
मतलब just like present indefinite changed will be changed into past indefinite, present continuous will be changed into past continuous, and present perfect will be changed into present perfect continuous. Present perfect continuous will be changed into past perfect continuous. Now what will happen with the past? Past indefinite will be changed into past perfect, past continuous will be changed into past perfect continuous. Okay, and past perfect and past perfect continuous will have no change. So this one is present continuous, it will be changed into past continuous, and tense will be was. He told me that he was not going to market. Okay. Next example. I told you, I said to you, we will play a match. We will play a match. What will the answer? First of all, we are going to change reporting verb. I told you. Said to will be changed into told. I told you, as the given sentence is in assertive, so conjunction will be that. Now this one is in first person. First person according to subject, and according to subject this one is also in first person. Okay? ये भी फर्स्ट पर्सन में है और आपका ये भी फर्स्ट पर्सन में, तो फर्स्ट पर्सन में ही चेंज होगा। जो पर्सन जब आप बोलते हो ना अकॉर्डिंग टू फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेकंड, तो ये जो अकॉर्डिंग का हिसाब का मतलब होता है कि जो पर्सन यहाँ पर दिया है उसी पर्सन में आपका ये चेंज होगा। जैसे आप बोलते हो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो ये जिस पर्सन में है उसी पर्सन में, ये दोनों फर्स्ट पर्सन में, तो वी है ना, विल का वुड, कैन का कुड, मी का माइट, ये चीजें आपने पढ़नी होंगी। सो द आंसर इज आई टोल्ड यू दैट वी वुड प्ले अ मैच। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल। I have completed my work. Subject will remain same, you. There is no object. Just see here, there is no object. That's why you are not going to change this set into told. You said. Conjunction that. Now, this one is first person. First person according to subject, and here your subject is in second person. First person according to subject, and subject is in second person. So here you have to put second person, and tense will be present perfect change into past perfect. So you had completed. You have completed. Now my was possessive noun for I. So with you have to choose your. You said that you had completed your work. So student, today we have discussed your assertive sentences, and now you have to do first exercise of the chapter narration given in your textbook, and in my next video lecture I will provide answer sheet, and then we will continue our topic after assertive sentence means interrogative sentence, narration of interrogative sentences. Till then, have a nice day. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे कि पुष्प के भाग कौन कौन से होते हैं, जिसमें से हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि पुष्प के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? बादल, दलपुंज और कुमंग, दूसरा स्त्री केसर, यानी पुष्प के 4 भाग होते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि पुष्प के कितने चक्र होते हैं, तो हम लोग क्या बताएंगे? पुष्प के 4 चक्र होते हैं। जो और पुष्प करता क्या है? पुष्प परागण में हेल्प करता है, प्लस
क्या होता है कि पुष्प जो होता है पौधे के जन्म में या फिर नई पीढ़ी के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि उसमें परागकण होते हैं और उसमें क्या होता है, स्त्री केसर होता है, जिसकी वजह से क्या परागण होता है और नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या है, जन्म में हेल्पफुल होता है, यानी जो प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, इसकी वजह से, यानी प्लांट्स के इन पार्ट्स की वजह से। तो प्लांट्स में अगर फ्लावर में अगर 4 चक्र होते हैं, जिनमें से पहला बाह्य दलपुंज, दूसरा दलपुंज, तीसरा पुमंग, चौथा स्त्री केसर। जिनमें से 2 वर्ग जो होते हैं, यानी 2 चक्र जो होते हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं जितने कि ये दोनों होते हैं, यानी कौन से, मेल जो सेक्स ऑर्गन है और फीमेल सेक्स ऑर्गन है, क्योंकि इन दोनों के बिना यहाँ पर कोई भी परागण या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। क्योंकि बाह्य दलपुंज क्या करता है, जो पौधा होता है उसमें जो कली निकलती है तो उसकी रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, दूसरा फोटोसिंथेसिस भी करता है। अगर वो नहीं होगा तो भी काम चल जाएगा, बट इतना जरूरी नहीं होता है जितना ये जरूरी होते हैं। प्लस दूसरा कौन सा होता है, दलपुंज, जिसे हम दल के नाम से जानते हैं, जो कैसे होते हैं, कलरफुल पंखुड़ियां होती हैं और क्या करती हैं, बहुत सुंदर होती है, जिनका वर्क क्या होता है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना, यानी उनके जो कलर होते हैं वो इतने ज्यादा इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, जिससे वो इंसेक्ट करते क्या है, नेक्टर को शक करते हैं। तो ये काम भी होता है दल का। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, पुमंग, यानी प्लांट्स की जो सेक्सुअल पार्ट्स है उनके बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने 2 पार्ट पढ़ रखे हैं, जो कौन कौन से थे, बाह्य दलपुंज और दलपुंज। अब आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल पार्ट्स होते हैं, यानी जो रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं। तो पहला कौन सा इनमें से, पुमंग। पुमंग को इंग्लिश में एंड्रोशियम भी कहते हैं। एंड्रोशियम क्या होगा कि ये नर जननांग है, मैंने अभी बताया आपको कि क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। नेक्स्ट क्या है कि इसकी इकाई जो होती है, पुमंग की इकाई जो होती है, यानी यूनिट, ये किससे मिलके बना होता है, तो ये पुंकेसर से मिलके बना होता है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि पुंकेसर क्या है, तो पुंकेसर क्या है, पुमंग की इकाई, यूनिट ऑफ एंड्रोशियम इज कॉल्ड पुंकेसर। नेक्स्ट है ये एंथर। नेक्स्ट है फूला हुआ भाग परागकोश, यानी जो स्ट्रक्चर होता है पूरा, जैसे आप लोग ये देख रहे हो, तो कह रहा है फूला हुआ भाग जो परागकोश है। तो जब हम लोग ये स्ट्रक्चर देखते हैं, ये क्या है, पुमंग का स्ट्रक्चर है, जिसमें से जो फूला हुआ भाग है उसको क्या बोल रहे हैं, परागकोश। कोश का मतलब होता है कोई खाली जगह जहां पर परागकोश का अब जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि फूला हुआ भाग परागकोश, तो परागकोश, कोश का मतलब क्या होता है, कोई खाली जगह, कोई सेल लाइक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या है, परागकोश, यानी परागकण यहाँ पर भरे हुए होंगे, तो उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, परागकोश। नेक्स्ट है परागकोश के नीचे पुतंतु होता है, ये जो आप देख रहे हो स्टेमल लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है, इसको क्या बोल रहे हैं, पुतंतु, यानी नीचे क्या है, पुतंतु, उसके ऊपर क्या लगे हुए हैं, परागकोश। नेक्स्ट है नर युग्मक, क्या है, परागकण है। ये तो था हम लोग का नर जननांग, लेकिन उसमें क्या है, कुछ यूनिट्स होती हैं जिससे मिलकर बना होता है, कौन सा होता है, वो पुंकेसर, और उसके लिए जो रिप्रोडक्शन भी जरूरी होता है वो क्या है, परागकण। तो आप डायग्राम में देख सकते हो अच्छे से कि ये जो हम लोगों ने रखा है ऐसे स्ट्रक्चर, ये इसको कट करके रखा है। तो इसके अंदर कैसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, इस राउंड शेप में क्या है, यहाँ पर परागकण यानी पॉलन ग्रेन्स बहुत सारे होते हैं जो यहाँ पर फिल होते हैं। जब कभी इंसेक्ट इन पे बैठता है तो वो यही परागकण ले जाकर दूसरे प्लांट में छोड़ देता है। तो इनमें क्या बने, खूब सारे परागकण, और परागकण क्या होते हैं, नर युग्मक। नर युग्मक क्या है, परागकण, और ये इसके अंदर खूब सारे भरे हुए होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं स्त्री केसर यानी गायनोशियम की। तो गायनोशियम क्या है, मादा जनन अंग। प्लांट में 2 चक्र होते हैं इंपॉर्टेंट, कौन कौन से, ये नर जनन और मादा जनन। तो दूसरा क्या है, मादा जनन अंग, ये क्या है, मादा जनन अंग, और आधारी भाग को क्या बोल रहे हैं, इसके अंडाशय। आप लोग देख सकते हो डायग्राम में, ये क्या है, बेसल पार्ट, इसको क्या बोल रहे हैं, अंडाशय। नेक्स्ट है मध्य भाग, मध्य भाग को क्या बोल रहे हैं, वर्तिकाग्र। नेक्स्ट है अंतिम भाग, अंतिम भाग क्या है, वर्तिकाग्र, इसको क्या बोलेंगे, वर्तिकाग्र बोलेंगे। तो एक बार फिर देखते हैं कि जो सबसे लास्ट पार्ट यानी बेसल पार्ट है वो अंडाशय, मध्य भाग वर्तिका, और स्टार्टिंग का जो पार्ट है उसको क्या बोल रहे हैं, वर्तिकाग्र। उसके बाद क्या, अंडाशय। अंडाशय में क्या होते हैं, बहुत सारे बीजांड होते हैं, बहुत सारे बीजांड इसके अंदर भरे होते हैं ऐसे करके। तो ये क्या करता है, जब ये परागकण इसके ऊपर आते हैं तो ये इस पे आके मिल जाते हैं। तो अंडाशय में क्या, पुष्पाशन का चौड़ा व फूला भाग। अंडाशय क्या होता है, पुष्पाशन, जहां पर पुष्प लगा होता है उसका जो
नेक्स्ट है बीजांड। बीजांड इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ओरी के अंदर, इसको क्या बोल रहे हैं? बीजांड बोल रहे हैं। नेक्स्ट है बीजांड से बीज और फल भित्ति। बीजांड से बीज और फल भित्ति दोनों का निर्माण होता है। किससे? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर फिजिक्स क्लास। मैं आपका फिजिक्स टीचर प्रदीप शर्मा। कक्षा 10 की बेटा जो क्लास चल रही थी अब तक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा था, बताया था सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत। कोइंसिडेंस बेटा ये जो सिलेबस में आपके ये जो टॉपिक था ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो इसकी तैयारी की हालांकि आपने तो बहुत अच्छी कर रखी होगी, बट अब क्या करें, ये हट गया है, ये आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है अभी के लिए, इस सेशन के लिए। तो आपको इसे नहीं पढ़ना है। तो आज से हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं प्रकाश, यानी लाइट। और प्रकाश में भी आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है, चूँकि आप लोग कंटिन्यू स्कूल आ रहे थे तो प्रैक्टिस तो अच्छी है। लेकिन हमें क्या करना है, हमको फिर से एक बार कोशिश करनी है कि जो चीज़ें छूटी हुई हैं, जो चीज़ें नहीं समझ में आई थी, उनको भी अब हम समझ के चलें। तो सबसे पहली जो बात आती है वो होती है प्रकाश। क्या है प्रकाश? जब होता है तो हमें सब अच्छा लगता है, जब नहीं होता है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। अच्छा ना लगने का रीज़न होता है कि जब प्रकाश नहीं होता है तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। क्लियर हो रही बात? यानी प्रकाश जब होता है तो हमें सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, और जब प्रकाश नहीं होता है तो हमको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इसका रीज़न क्या है, इसका मतलब क्या है, ये समझना है। पहली बात तो ये समझ लो कि प्रकाश जो है वो एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। और ये तरंगें जब भी किसी वस्तु पर पड़ती हैं तो उस वस्तु को चमकदार बना देती हैं। यानी प्रकाश जिस वस्तु पे पड़ता है उस वस्तु को चमकदार बना देता है। अगर उस वस्तु पे प्रकाश नहीं पड़ेगा तो वो वस्तुएं चमकदार नहीं होंगी, और जब चमकदार नहीं होंगी तो हमको दिखाई भी नहीं देंगी। बात समझ में आ गई? दूसरी इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जब ये विद्युत चुंबकीय तरंगें वस्तु पर पड़ती हैं तो वस्तु को चमकदार बना देती हैं, और वस्तुएं चमकने के साथ क्या करती हैं, ये जो प्रकाश पड़ने के बाद वस्तु पे गया, वस्तुओं ने इन प्रकाश को अवशोषित किया, अवशोषित करके बाहर जो रंग है उनको निकाला, और वो रंग यानी प्रकाश को परावर्तित किया, ये समझो। और वो प्रकाश जो है परावर्तित होकर जब हमारी आंखों पे पड़ता है तब हमको वो वस्तु दिखाई देती है। बात समझ में कम आ रही है? देखो क्या है कि हमारे घर पे सपोज करो एक टेबल है, और टेबल के ऊपर एक कांच का जार रखा हुआ है, ठीक है। कहीं एक तरफ से प्रकाश आया और उस जार पे पड़ा। जब प्रकाश उस जार पे पड़ा तो वो जार जो हुआ वो चमकने लगा, मतलब उसके अंदर प्रकाश आया तो प्रकाश उसने अवशोषित किया, और अवशोषित कर कर चमकदार हो गया। अब जार में प्रकाश पड़ गया, जार चमकदार हो गया। जार से जो प्रकाश परावर्तित होगा, जो प्रकाश बाहर निकलेगा, अगर वो हमारी आंखों तक आ जाता है तो हम उस जार को देख सकते हैं। और मान लो बीच में कहीं पर वो हमारी आंखों से आने से पहले ही ख़त्म हो जाए या कहीं और चला जाए, किधर किसी भी डायरेक्शन में मुड़ जाए, तो फिर हमको वो जार दिखाई नहीं देगा। दूसरी बात, मान लो कि वो जो जार है वो बहुत अच्छे कांच का बना हुआ है, और उसमें प्रकाश जब पड़ता है तो पड़ने के बाद 1% उसके अंदर प्रकाश नहीं रुक रहा है, और पूरा जो प्रकाश है वो क्या हो रहा है, बाहर निकल जा रहा है। बाहर निकल जा रहा है मतलब ट्रांसपेरेंट है, तो जो प्रकाश आपने इस तरफ से डाला जार में और उस तरफ से पूरा प्रकाश बाहर निकल गया। अगर पूरा प्रकाश बाहर निकल जा रहा है तो इसका मतलब है कि उस जार ने 1% जो है वो प्रकाश को अवशोषित नहीं किया है। अगर 1% इसने प्रकाश को अवशोषित नहीं किया है तो भी कॉमन सी बात है कि वो प्रकाश को परावर्तित भी नहीं कर सकता है, और जब वो प्रकाश को परावर्तित नहीं करेगा तो इसका मतलब है कि हम भी उस जार को नहीं देख सकते हैं। ये एग्जाम्पल आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब आप किसी मॉल में जाते हो, बड़े वहाँ पर किसी शोरूम में जाते हो, तो जब आप मॉल के शोरूम में जाते हो तो देखते हो वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे शाइनी गेट लगे होते हैं ग्लास के। और मान लो कभी कभी हमसे गलतियाँ हो जाती हैं कि उन डोर्स में इतनी अच्छी क्वालिटी का ग्लास लगाया जाता है, कांच लगाया जाता है कि अंदर शोरूम की जो लाइट्स हैं
वो उस पर पड़ती जरूर है, लेकिन पड़ने के बाद पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब पूरी तरह से रिफ्रैक्ट हो जाती है, यानी अपवर्तित हो जाती है, यानी उस ग्लास को यानी उस कांच को पार करके बाहर चली जाती है। तो कभी हम लोग ऐसी नज़र में देखते हैं तो हमें वो ग्लास नज़र नहीं आता और हम सीधे चले आते हैं, फिर हम जाकर उससे टकरा जाते हैं, टकराते हैं ना। तो जब हम उससे टकरा जाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कांच हमको नज़र नहीं आया, या कांच का जो गेट है, जो दरवाज़ा है, वो हमें नज़र नहीं आया। इसका मतलब तो सीधा सा ये हुआ ना कि उस पर जो भी प्रकाश पड़ा होगा वो प्रकाश पड़ने के बाद उसने अवशोषित नहीं किया, और या अवशोषित ना करके उसने परावर्तित नहीं किया। तो कुल मिला के चीज़ें आपको सिर्फ तब दिखाई देंगी जब उस वस्तु पे प्रकाश पड़ने के बाद परावर्तित होकर आपको आप परावर्तित होकर आपके पास तक आएंगी, तभी आप उन चीज़ों को देख सकते हो। बात समझ में आ गई? तो प्रकाश की परिभाषा अगर हम पढ़ना चाहेंगे तो कॉपी में आपकी लिखी होगी, हम एक बार फिर से आपको बता रहे हैं कि प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलती है, और प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, यह स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाता है। क्यों आवश्यकता नहीं होती? क्योंकि ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, और विद्युत चुम्बकीय तरंगों को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है ना। माध्यम मतलब जिनके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाए। अब सोचो सूर्य हमसे कितनी दूर है, करोड़ों किलोमीटर की दूरी पर है ना। वहाँ से यहाँ तक प्रकाश जो है वो बिना किसी तार के, बिना किसी माध्यम के आ रहा है। तो मतलब क्या है? बिना किसी माध्यम के आ रहा है, इसका मतलब है कि इसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। क्लियर हो गई बात? दो बातें। तीसरी बात यह है कि प्रकाश की निर्वात में जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। यानी प्रकाश जो है वो निर्वात में भी चल सकता है, यानी जहाँ पर वायु भी नहीं है। याद रखो, हमारे वायुमंडल में जब आता है तो यहाँ पर धूल के कण होते हैं, धुएं के कण होते हैं, वाष्प के कण होते हैं, है ना, हवा होती है, ये सारी चीज़ें मौजूद है हमारे वायुमंडल में। तो जब ऐसी इतनी चीज़ों से टकराएगा तो थोड़ी सी तो उसकी चाल कम हो जाएगी, लेकिन निर्वात में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो वहाँ पर शुद्ध रूप से जब प्रकाश की चाल को मापा गया है तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, और प्रकाश की चाल को हम लोग लिखते हैं, प्रदर्शित करते हैं c से। किसे प्रदर्शित करते हैं? c से। तो c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड जो है ये प्रकाश की चाल है। ठीक है, यानी प्रकाश की चाल को हमने c से प्रदर्शित किया, और इसकी चाल जो है वो कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इसके बाद फिर कुछ रीजन्स आ जाते हैं, जैसे प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है, यानी प्रकाश जो होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, मुड़ता नहीं है। फिर अगली बात आ जाएगी इसी पे कि जब प्रकाश किसी भी वस्तु पर पड़ता है तो भाई कॉमन सी बात है, मुड़ेगा नहीं। अगर मुड़ेगा नहीं तो क्या होगा? तो उस वस्तु की क्या बना देगा? वो परछाई बना देता है, यानी प्रकाश जिस वस्तु पे पड़ता है उसकी परछाई बना देता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा, इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है, प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होता है। ठीक है, ये सारे आपके चैप्टर्स भी हैं, जब आप आगे पढ़ोगे तो इनको इसी तरह से पढ़ोगे। तो आज आपके लिए जो टॉपिक है वो केवल प्रकाश की परिभाषा है। चलिए एक टॉपिक इसके आगे और बढ़ा देते हैं, और वो है प्रकाश का परावर्तन। क्या है? प्रकाश का परावर्तन। देखो, परावर्तन को समझने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो ये समझो, परावर्तन का मतलब होता है पढ़कर वापस जाना। परावर्तन का मतलब क्या होता है? पढ़कर वापस जाना। अर्थात जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर पड़ता है, जब प्रकाश किसी चिकने तथा पॉलिशदार तल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग जो होता है वो उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। अधिकांश भाग का मतलब क्या हुआ कि हम मान लेंगे कि 100%, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि 100% प्रकाश आप किसी सरफेस पर डाल रहे हो तो वो सरफेस पर पड़ने के बाद पूरा 100% रिफ्लेक्ट हो जाए, यानी परावर्तित हो जाए। तो
तब हम क्या कह रहे थे, परिभाषा पढ़ रहे थे, यदि जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तब प्रकाश की इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। बात समझो, मान लिया ये जो है जेड डैश जो है वो एक दर्पण है, आईना है, शीशा है, मिरर है, बहुत सारे नाम से हम लोग जानते हैं, ये है, ठीक है। जिसमें से ऊपर वाला जो पार्ट है वो वाला हिस्सा है जिसमें हम अपना फेस देखते हैं, और नीचे वो हिस्सा है जो उसके फेस देखने के पीछे होता है, यानी कलई किया हुआ भाग है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, अब हमने इस पर ये एक प्रकाश की किरण डाली है, ठीक है। तो जो बेटा प्रकाश की किरण हम इस पर डाल रहे हैं उसका नाम होता है आपतित किरण। क्या नाम है, आपतित किरण हमने इस पर डाल दी। अब ये आपतित किरण जिस बिंदु पर इस तल पे टकराएगी उस बिंदु का नाम हो गया आपतन बिंदु। क्या नाम हो गया, आपतन बिंदु, यानी इंसिडेंट पॉइंट, ठीक है। ये है आपका आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्यों बनता है, आपतन बिंदु बनने का सिर्फ एक रीजन होता है कि जिस बिंदु पर आपतन बिंदु बनेगा उस बिंदु पर हमें अभिलंब ड्रॉ करना है। अभिलंब मतलब इस तल पर जेड डैश तल पर हमने एक लंब डाल दिया, लंब डालना आता है ना, हाँ 90 डिग्री का, तो ये बन गया अभिलंब, ठीक। अब जब ये अभिलंब बन गया है तो कुछ चीज़ें हमारे सामने खुल गई। जैसे सबसे पहले हमने आपको बताया था कि एक प्रकाश किरण जो हम इस पर भेजेंगे, आपतित कराएंगे, उसका नाम होगा आपतित किरण। आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ेगी उसे मान लेंगे आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु से हमने उस पृष्ठ पर एक लंब डाला जिसका नाम हो गया अभिलंब, ठीक है। अब परावर्तन की घटना में एक चीज निश्चित होती है कि जो प्रकाश किरण, ठीक है, आप अभिलंब से जितने कोण पर आ रही होगी अभिलंब से उतना ही कोण बनाकर वापस भी जाएगी, ठीक है। अभिलंब से उतना ही कोण बनाकर वापस भी जाएगी। तो ये जो हो गया वो आपकी परावर्तित किरण हो गई, क्योंकि ये वापस गई है। यही किरण बेटा टकरा कर अगर आपको नजर आएगी या आपकी आंखों में पड़ेगी तो आपको वो वस्तुएं दिखाई देंगी, अन्यथा आपको वो वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी, ठीक है। तो अब कुछ बातें हैं, तो परावर्तन समझ में आया। क्या समझ में आया, जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तब प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला जो नियम होता है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी लाई ऑन अ सेम प्लेन, ये एक ही तल पर दिखाई दे रहे हैं। बात समझ में आ गई। दूसरी और महत्वपूर्ण बात है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बन रहा है जिसका आई नाम देते हैं। इसी प्रकार से परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बन रहा है जिसे आर कहते हैं। आई का मतलब हो गया आपतन कोण। क्या मतलब हो गया, आपतन कोण, और इसका मतलब हो गया परावर्तन कोण। क्या मतलब हो गया, परावर्तन कोण। तो जरा ध्यान से देखो, आपतित किरण और विलंब के बीच में जो कोण बनता है वो हो गया आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है वो है परावर्तन कोण। और हमने आपको पहले ही बता दिया था कि ये अभिलंब से जितना कोण बनाकर आई थी उतना ही अभिलंब से कोण बनाकर वापस जाएगी। अर्थात इसका मतलब बिल्कुल सिंपल सा हुआ कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। बात समझ में आ गई। तो ये दो नियम हो गए हैं। पहला नियम, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा जो नियम है वो सिंपल सा है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो परावर्तन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला रेगुलर और दूसरा इरेगुलर, यानी नियमित और अनियमित। इनसे बारे में और भी चर्चा करेंगे हम लोग अगले वीडियो में, ठीक है। तो इतना सब आपको तैयार रखना है, तैयार करना है, और कॉपी पे जो लिखा है उसे बार बार आपको पढ़ना है, क्योंकि यूनिट 2 जो आपका आज होने वाला है उस यूनिट 2 में आपको जो चैप्टर आएगा, ठीक है, वो जो चैप्टर आएगा वो होगा अब आपका प्रकाश का परावर्तन। इसलिए आज से इस पे पढ़ने पे लग जाइए, ठीक है। बाय।